Bismillahirrahmanirrahim. We have completed chapter number 1 to exercise 1.1, 1.2 and 1.3. Today I shall start chapter number 2, page 28, properties of real numbers. Properties of real numbers. Open your books, page 28, properties of real numbers, article number 2.41. Properties with respect to addition. Number first is closure property. Number first is closure property. Sum of any two real number is also be a real numbers. 2 or 3 both are real numbers. If we add 2 plus 3, the answer is 5. 5 is also be real. If real number added in real number, the answer is a real number, then it is close with respect to addition. In the same way, example number first, 16 and 24 are real numbers. Adding 16 plus 24, the result is 40. 40 also be real numbers. Okay. Now next one is a commutative property. 2 plus 3 is equal to 3 plus 2. 2 plus 3's answer is 5. 3 plus 2 is also the answer 5. Therefore, it is called commutative property. ये MCQs में आते हैं, इसलिए आपको बताया जा रहा है if x plus y is equal to y plus x, the property used is dash. तो क्या होगा? Commutative property. If x plus y is equal to y plus x, the property used is called commutative property. उसके बाद है associative property. Next one is a associative property. Next one is a associative property. Associative properties mean if there are three elements, variables x plus x, y and z, x plus y, first y plus z form association, x is free, is equal to x plus y plus z. Answer is the same. For example, x is 2, y is 3 plus 4, z is 4. The result will form 2 plus 3 plus 4. 4 plus 3, 7. 7 plus 2. This is 9. This is 5 plus 4. The answer will be 9. This property is called associative property with respect to addition. Addition add किया जा रहा है. Therefore, it is addition. Okay. Associative property with respect to addition. उसके बाद next है बेटे additive identity. Additive identity. Additive identity बेटे MCQs में आता है. The additive identity of a real number is dash. वो नंबर जो किसी भी नंबर में ऐड करें आंसर में इंक्रीज और डिक्रीज ना हो उसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं. तो कौन सा नंबर है? 0. 0 किसी नंबर में भी ऐड करें तो आंसर इंक्रीज भी नहीं होगा, डिक्रीज भी नहीं होगा, रिमेन सेम. So therefore additive identity is 0. Additive identity is additive identity is 0.
0. Okay. Any more question? Next one is a additive inverse. बेटे एडिटिव इनवर्स भी वो भी खास तौर पे समझना है. एडिटिव inverse. The additive inverse is the number which when added in itself the result is 0. For example, if 2 is our number, इस 2 में क्या ऐड करें कि आंसर 0? ऐड करेंगे -2 को, तो क्या आंसर आ जाएगा? 2 - 2 इज इक्वल टू 0. तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -2. 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -2. और -2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +2. -2 में +2 ऐड करें तो क्या आंसर आएगा? 0. तो देयरफॉर 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -2. x का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -x. -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +x. उसके बाद नेक्स्ट है बेटे आर्टिकल पेज नंबर 29 पर दिया हुआ प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी खास तौर पे बेटे समझना है, ये अक्सर आता रहता है. मैं वो 2 नंबर लिखने लगा हूं जो अक्सर पूछे जाते हैं. 0,1 is close with respect to डैश, ये लिखा जाता है. WRT होता है विद रिस्पेक्ट टू. किसके लिहाज से? एडिशन के लिहाज से, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, डिवीजन के लिहाज से. ये किसके लिहाज से क्लोज है? इसको बेटे बहुत गौर से समझना. ये जो हमारे नंबर दिए हुए 0 और 1 है, अब हम 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें क्या आंसर आएगा? 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 0. 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें क्या आंसर आएगा? 0 आएगा. 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा आंसर? 1 आएगा. 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आएगा? 0. देखें 1 और 0 आंसर ये आ रहे हैं. मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से इसी ब्रैकेट के अंदर का ही अगर आंसर आ रहा हो तो इट इज क्लोज विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. एडिशन के लिहाज से देखते हैं, 0 में 0 ऐड करें तो आंसर तो 0 आया, लेकिन 1 में 1 ऐड करें क्या आंसर आया? 2. तो 2 तो इसमें नहीं है. इस सेट के अंदर वो नंबर है. देखें मल्टीप्लाई में 0 और 1 0 0 1 या 0 1 1 1 आ रहा है. आ रही समझ? 1 0 ही आ रहा है आंसर. आंसर 1 0 आ रहा है. तो इट इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू ओनली मल्टीप्लिकेशन, नॉट टू एडिशन. एडिशन के लिहाज से क्लोज नहीं, इसलिए कि 1 को 1 में ऐड करें तो आंसर 2 आ रहा है. 2 इज नॉट प्रेजेंट इन दिस वन सेट. ओके. अब आप सोच रहे होंगे -1 में 0 को माइनस करें आंसर 1 आया, लेकिन 0 में 1 को माइनस करें तो -1 आया. तो -1 तो सेट में नहीं है, लिहाजा इट इज नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन. डिवीजन के लिहाज से भी क्लोज नहीं है. 0 को 1 से डिवाइड करें तो 0 आंसर आता है, लेकिन 1 को 0 से अगर डिवाइड करें तो इन्फिनिटी आता है. सारी जिंदगी डिवाइड करते रहे तो डिवाइड नहीं होगा. ओके. ये तो 0 और 1 किसके लिहाज से क्लोज है? मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से.
ना एडिशन के लिहाज से है, ना डिवीजन के लिहाज से है, ना सब्ट्रैक्शन के लिहाज से। ओके, ये याद रखना है, ये अक्सर पूछा जाता है। इसी तरह एक और भी होता है, उसको 1, -1 इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू डैश। ये भी मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 1 इसमें मौजूद है। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या है? +1, वो भी इसके अंदर मौजूद है। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 आया। तो मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से इसी सेट के अंदर के नेचर का नंबर आना चाहिए। अगर इसके सेट के अंदर के नेचर का आंसर नहीं आया तो दैट इज नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन। एडिशन के लिहाज से देखें, 1 में -1 ऐड करें, क्या आंसर आया? 0। तो 0 तो नहीं है इसमें, therefore it is not close with respect to addition। किसके लिहाज से क्लोज है? क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन ओके, तो आपको ये खास तौर पे मैंने आपको बताया। उसके बाद है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। एक्स को वाई से, एक्स को मल्टीप्लाई करें वाई से, या वाई को एक्स से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर एक्स वाई आ रहा है। आंसर क्या आएगा? एक्स वाई। आंसर क्या आएगा? एक्स वाई। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स आपका अगर 2 है, एक्स आपका 2 है, वाई आपका 3 है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो दोनों का आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू रिमोट। Okay, in the same way, next associative property with respect to multiplication। associative property with respect to multiplication। देखिए, पहले हम x एक नंबर है, x y और z की एसोसिएशन होगी, x अकेला रह गया, इज इक्वल टू, अगर हम x और y की एसोसिएशन कर दें और z अकेला हो जाए, इनके नंबर पुट कीजिए। 2 3 into 4 is equal to 2 into 3 into 4। क्या सर है? 4 3 12, 12 to the 24। 2 into 12 is equal to 6 into 4। तो आंसर क्या आएगा? 24 is equal to 24। तो इसको क्या, इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। पहले y और z की एसोसिएशन थी, x अकेला था। अब x और y का एसोसिएशन हो गया, z अकेला। नंबर अगर पुट करें, आंसर सेम आएगा। तो क्या कहलाएगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ओके, पेज टर्न कीजिए, पेज नंबर 30 आइए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक एडिटिव इनवर्स था, अब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो कौन सा नंबर है जो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करे तो इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होता नंबर? 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आया? 5। यानी 5 में कोई इंक्रीज नहीं हुआ, तो 1 क्या हुआ?
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1। याद रहेगा। अब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक एडिटिव इनवर्स था, अब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक्स को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आए? 1/x से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका 1 आएगा। तो x का इनवर्स क्या हुआ? 1/x। और 1/x का इनवर्स क्या होगा? 1/x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 आए? तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1/x का इनवर्स क्या हुआ? x। अब गौर से बताइएगा बेटे, x की पावर -2 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? अगर पावर में पूछा जाए तो उसकी पावर की साइन चेंज कर दीजिए। x की पावर -2 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x की पावर +2 से। तो क्या आंसर आ जाएगा? आपने 6, 7, 8 में पढ़ा होगा कि अगर बेस सेम मल्टीप्लाई, बेस सेम हो, मल्टीप्लाई और पावर्स क्या होती हैं? ऐड होती हैं। -2 + 2 क्या आ गया? x की पावर 0। किसी नंबर की पावर 0 हो जाए तो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1। क्या होता है? 1। मल्टीप्लाई में पावर की साइन चेंज कर दो या उल्टा दो उसको। अगर 2 दिया है तो 1/2 कर देंगे, 3 दिया है तो 1/3 कर देंगे, x दिया है तो 1/x कर देंगे। अगर नेगेटिव पावर है तो पॉजिटिव पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे उसी को ही। अगर पॉजिटिव दिया है तो नेगेटिव से कर दीजिए। आंसर क्या आना चाहिए? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए 1 आना चाहिए। एडिशन में 0 आता है, मल्टीप्लिकेशन में 1 आता है। सुंदर बेटे, आपको समझ आ गया? ऐसा नंबर जो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करे तो एक दूसरे का वो इनवर्स होते हैं। एस की पावर +2 का इनवर्स क्या होगा? एस की पावर -2। एस की पावर -2 का पॉजिटिव इनवर्स तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? एस की पावर +2। क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आना चाहिए। वो नंबर बताइए जो किसी नंबर से, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 1 आए। जैसे 6 है, 6 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 1 है। इसकी पावर क्या है? 1। इसकी पावर क्या है? 1। किससे मल्टीप्लाई करें? माइनस एक्स की पावर 6 की पावर -1 से। क्यों? 6 की पावर 1 -1, 6 की पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाए तो वो क्या आ जाता है? 1 आंसर आता है। क्या आंसर आता है? 1 आता है। तो अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। 6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? अगर हम पावर नेगेटिव में नहीं लिखना तो अपॉन में करते हुए लिख दीजिए। देखें, 6 है, 6 से कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। तो 6 का इनवर्स क्या होगा? 1/6। 1/6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 6। आगे समझ बैठे? ये खास तौर पे ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं। आप एमसीक्यूज रटते हैं, समझ लेंगे तो आपको कभी याद करने की जरूरत नहीं पेश आएगी। और इसमें ये सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है कि आपके एमसीक्यूज आते हैं, क्योंकि इसके फौरन बाद फिर एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी और छोटी छोटी ये बातें आपसे पूछी जाएंगी। उसके बाद पेज नंबर 31 पे आइए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन with respect to addition. Distributive property of multiplication. Distributive property of multiplication with respect to addition. मिल गया? पेज नंबर 31, आर्टिकल नंबर 2.4.3, 24.3. Distributive property of multiplication with respect to addition. For example, x into y plus z is equal to
क्या आएगा, देखिए मल्टीप्लाई करके देखें, एक्स वाई प्लस, ओके। अब इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं, एक्स को बाद में भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं। अगर हम नंबर से रिप्रेजेंट करें तो क्या देखें, आंसर सेम आ रहा है। 2 इसको सपोज कर लिया, इसको हमने 3 किया, इसको 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, 4 प्लस 3 7, 14 आंसर आ गया। 6 प्लस 8 क्या आएगा, 14। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन आ गया, डिस्ट्रीब्यूटिव, एक्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पहले एक्स वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर प्लस होकर एक्स जेड से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें एक्स मल्टीप्लाई होकर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। इसको क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। बेटे समझ आ गई। अगर इस तरह आपको दिया जाएगा x इंटू वाई प्लस जी इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स जेड, द प्रॉपर्टी यूज्ड इज कॉल्ड डैश, तो आपने ये याद रखना है, इस फॉर्म में दिया जाएगा या इस तरह नंबर दे देगा, द प्रॉपर्टी यूज्ड इज डैश। उसके बाद 24.4 ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, फॉर एनी टू रियल नंबर्स x एंड y, x is less than y और x is equal to y या x greater than y, किसी भी नंबर, आप देखें सब इनइक्वालिटी दे दी गई, x लेस देन y भी कहा और लगा कर फिर कहा x is equal to y और x greater than y। तो इन तीनों में कोई एक सही हो सकती है, बाकी सब गलत हो सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। अगर x y से लेस है तो x इज इक्वल टू नहीं होता, ग्रेटर नहीं हो सकता, ओके। अगर x इज इक्वल टू है तो लेस भी नहीं हो सकता, ग्रेटर में, और अगर ग्रेटर है इक्वल नहीं हो सकता, लेस नहीं हो सकता। तो एक ही कोई प्रॉपर्टी एक ही सही हो सकती है, तो ये इसका नाम क्या होगा, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, 2 है, 2 इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब है 1 इससे मल्टीप्लाई करें 1 तो वही नंबर आएगा, यूनिट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या नंबर होगा। देखिए प्रॉपर्टी ऑफ, पहले इसकी प्रॉपर्टी क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, x इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू y, z इज इक्वल टू z होता है, 2 इज इक्वल टू 2, ओके। आगे बेटे समझ। अब आइए सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, पेज नंबर 31 और प्रॉपर्टी नंबर फिर को बॉटम में दिया हुआ है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू y और y इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, फिर y इज इक्वल टू x भी हो सकता है। अगर x y के इक्वल है तो इसमें y इज इक्वल टू क्या है, x, इसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। आप मिरर के सामने खड़े हैं, आपका इमेज आपके मिरर के अंदर है, आपके मिरर के अंदर जो इमेज है किसका है, वो आपका है, आपका इमेज मिरर के अंदर किसका इमेज, आपका, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल, सेम हो गए, इसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। उसके बाद है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ये आप मैथ में, ज्योमेट्री में बहुत ज्यादा थ्योरम को प्रूव करने में हर थ्योरम के अंदर अप्लाई होती है, वहां पे हर थ्योरम के अंदर अप्लाई होती है, ये खास तौर पे याद रखना है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, क्या कहा मैंने, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है, x इज इक्वल टू y एंड y इज इक्वल टू z। अगर x y के इक्वल है और y किसके इक्वल है, z के इक्वल है, तो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, इसका मतलब है फिर x इज इक्वल टू z हो गया। x की वैल्यू किसके इक्वल है, y के, y की किसके इक्वल है, z के, तो फिर x इज इक्वल टू क्या होगा, z होगा। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ओके। 9th क्लास
आ रही बेटे समझ? नेक्स्ट पेज टर्न कीजिए। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव प्रॉपर्टी नेक्स्ट वन है। एडिटिव प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्या है? एडिटिव प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्या है? एडिटिव प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्या है बेटे? एडिटिव प्रॉपर्टी। अगर x इज इक्वल टू वाई है तो दोनों में सेम नंबर ऐड करें, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगी। अगर x इज इक्वल टू वाई है तो x प्लस जेड इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। अगर x आपके पास फिजिकल बैलेंस है, एक तरफ x रखा एक तरफ z रखा y रखा, तो दोनों सेम है। अब x की तरफ भी z रख दीजिए और y की तरफ भी z रख दीजिए, तो आपका बैलेंस, फिजिकल बैलेंस क्या होगा? बैलेंस रहेगा या नहीं रहेगा? सेम क्वांटिटी बोथ पेन में सेम पुट कर दी जाए तो देयर इज नो चेंज। देयरफॉर x अगर y के इक्वल है तो सेम नंबर, जो चीज आपने फर्स्ट लेफ्ट साइड ऐड किया है वही अगर राइट साइड ऐड कर दें तो इसमें कोई चेंज नहीं आती। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या कहेंगे? एडिटिव प्रॉपर्टी। ओके, इसी तरीके से x इज इक्वल टू अगर y है तो इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। x को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो y को भी z से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देयर इज नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगी। सेम नंबर अगर x इज इक्वल y है तो x को z से मल्टीप्लाई कर दें, y को z से मल्टीप्लाई कर दें, तो देयर इज नो चेंज। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद क्या है? कैंसलेशन प्रॉपर्टी। कैंसलेशन प्रॉपर्टी, अगर x प्लस जेड इज इक्वल टू वाई प्लस जेड है तो सेम नंबर कैंसिल कर दिया जाए दोनों बोथ साइड, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? y। तो इसको क्या कहेंगे? कैंसलेशन प्रॉपर्टी। क्या कहेंगे? कैंसलेशन प्रॉपर्टी। क्या कहेंगे? कैंसलेशन प्रॉपर्टी। ओके, अगर 2x इज इक्वल टू 2y है, 2x इज इक्वल टू 2y, तो 2 से डिवाइड कर दें बोथ साइड, तो दोनों तरफ 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? y हो जाएगा। सेम नंबर दोनों तरफ हो तो कैंसिल हो जाते हैं, तो इसको भी क्या कहेंगे? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये क्या था? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये क्या है? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड कर देते हैं, सेम से डिवाइड कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा। इसमें सेम अपोजिट ऐड कर देंगे, इसको इस तरह भी कर सकते हैं, x प्लस जेड माइनस जेड इज इक्वल टू वाई प्लस जेड माइनस जेड। सेम नंबर कैंसिल हो गए तो आंसर आपका एक्स वाई। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिल कर दें तो उसको वहां पे लिख देंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। क्या कहेंगे? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। ये इसमें खास तौर पे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, या आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या प्रॉपर्टी दी गई है? आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। इफ x इज लेस देन y, x इज लेस देन y और x जो है वो 0 से ग्रेटर है, then there exists a natural number n1 such that x and x greater than y हो जाएगा। अगर किसी नंबर को, किसी नंबर से अगर x लेस है, x क्या लेस है? y से, और अगर हम इस लेस नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, पर इसके n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये लेस नहीं रह जाएगा, अब क्या हो गया? अब ग्रेटर कहलाएगा। वेयर n इज नॉट 0। अगर x y से लेस है तो प्लस के नंबर को किसी नंबर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी जो इनइक्वालिटी साइन है वो चेंज हो जाएगी, लेस की रिप्लेस क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। ये किसने बताया था? आर्किमिडीज ने। तो उसी के नाम से ये प्रॉपर्टी काउंट की जाती है। अगर √2 फॉर एग्जाम्पल उसने दिया हुआ है √2 लेस देन √7, तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें
तो ये ग्रेटर देन 7 रूट के इक्वल हो जाएगा, 7 रूट से ग्रेटर हो जाएगा। अगर इसका रूट लें तो इसका 1 2 का रूट लेकर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर ग्रेटर आ जाएगा। आगे बेटे समझ, आगे समझ। 1 से ग्रेटर नंबर लेना है आप हमेशा, कोई भी 1 से, एन वेयर एन इज ग्रेटर देन 1, एन क्या है, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इनइक्वालिटी में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट देखिए ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, x इज लेस देन y, ओके, एंड y is less than z, so it means x is less than z. This is called transitive property inequality. This is called transitive property in inequality. ओके, आगे बेटे समझ। इसी तरीके से आप इसमें ऐड करके भी देखें, x is less than y, x is less than y, इसमें z ऐड कर दें, लेफ्ट साइड भी ऐड कर दें, राइट साइड भी ऐड कर दें सेम नंबर, तो अब इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। सेम ऐड किया तो कोई चेंज नहीं आएगी। इसको कहेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या कहेंगे, एडिटिव प्रॉपर्टी। और अगर हम इसी तरह मल्टीप्लाई कर दें सेम नंबर से, इफ x इज लेस देन y, इसको x z से मल्टीप्लाई कर दिया तो y को भी कर z से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों में आंसर सेम रहेगा। तो ये क्या कहलाएगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। बेटे ये तमाम प्रॉपर्टीज आपने याद करनी है। एक्सरसाइज 1.2.1 जो है इसी प्रॉपर्टीज के जरिए से सॉल्व करनी होगी। प्रॉपर्टी तमाम लिखनी है आपने। मैं आपको इसका इस MCQs के अंदर पूछा जाता है, MCQs के अंदर पूछा जाता है। लिहाजा आप इन प्रॉपर्टी को जो जिन प्रॉपर्टी का ख़ास तौर पे नाम लिया था उन पे ख़ास तौर पे फोकस करना है। और उसके बाद आपको लॉज आ जाएंगे 2.2 से लेकर, नेक्स्ट है बहुत आसान, ये बहुत जल्दी से आपके जो है ना ये 2 चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2.2 से लेकर 2.5 तक सिर्फ बहुत बहुत आसान, सिर्फ उसमें बताना है। ऑरल टाइप के क्वेश्चन है डायरेक्ट। इसको क्या कहते हैं, एक्स रेस पर ए, एक्स क्या कहलाता है, पावर का नाम क्या होता है, ये बताना है। इसी तरह के रूट के अंदर दिया हुआ नंबर तो वो उसको क्या कहते हैं, रेडिकेंट कहते हैं। और रूट की पावर, रूट जो होता है इंडेक्स कहलाता है। तो इस तरह नाम देते हुए लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर पूछा जाएगा। लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर, लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर किस तरह होता है, जब फॉर एग्जाम्पल ये 7x रेज पर ए, इसमें x क्या है, बेस है, ए क्या है, इंडेक्स। तो आपके सब क्वेश्चन हो गए, फर्स्ट के तमाम बिट्स हो गए। ओके, आप इसी तरीके से एक और देख लीजिए। अगर ब्रैकेट दिया हुआ हो, ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, और पावर कौन सी हो, एक्सपोनेंट क्या हो, इवन, इवन। ब्रैकेट्स के अंदर पॉजिटिव हो या नेगेटिव, और एक्सपोनेंट क्या हो आपका, इंडेक्स क्या आपका पॉजिटिव हो, आप इंडेक्स आपका क्या हो, इवन, कौन सा हो, इंडेक्स क्या आपका हो, इवन, तो आंसर ऑलवेज भी पॉजिटिव आएगा। और अगर नेगेटिव अंदर हो और यहाँ पे और कोई भी पावर हो, आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। ओके, जैसे -1 को 3 से मल्टीप्लाई करें, -1 की रेस पावर क्या 3, तो -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें
-1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 1 था 1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो 1 प्लस प्लस माइनस माइनस 1 1 था 1, कहाँ से क्या आ गया माइनस आ जाएगा, नेगेटिव में आएगा। ऑड पावर आ गई, ये एक्सपोनेंट आपको क्या है ऑड है, अंदर नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा। इवन पावर अगर होती, अगर इवन होता तो -1 2 किया, तो -1 को -1 से मल्टीप्लाई कर माइनस माइनस प्लस 1 1 था 1 1 1 था 1, ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। तो देखिए इवन अगर पावर हो, ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव हो तो पास से क्या आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया 2.2 का। ये 3 क्वेश्चन है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। आप बताना, गौर से बताइएगा बेटे। 38 इंटू 83 पावर 9। अच्छा बेटे, अब आप सोच कर बताइए कि आप पहले क्या करना चाहिए। याद रखिएगा, फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट। 83 की पावर 9 को पहले सॉल्व करें, फिर 38 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 38 से मल्टीप्लाई नहीं करना। आगे समझ? तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, 3 का 2 है। तो फर्स्ट we find the 9th power of 83 and then multiply by 38. ओके, पहले हमेशा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। बॉडमस में ब्रैकेट ऑफ होती है पहले, बॉडमस में ब्रैकेट ऑफ करनी है पहले, उसके बाद आप 38 को, तो आपकी एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट होगी। आगे बेटे समझ? ये आप तमाम क्वेश्चन इसी तरह। थर्ड तो यही एक ही क्वेश्चन था थर्ड में, उनमें तो बिट्स दी गई हैं, आप देखकर बता सकते हैं। लॉ ऑफ पावर करते हैं। जी नेक्स्ट बेटे, आपने टाइम बहुत कम है, अटेंडेंस जल्दी से लीजिए, अपने नाम बोलिए, अटेंडेंस यस लिखते जाइए बेटे, बहुत शॉर्ट टाइम है। हरी अप हरी अप हरी अप। अटेंडेंस जल्दी से, अपना नाम लिखिए, यस लिखिए। अपना नाम लिखिए, यस लिखिए, जल्दी से हरी अप। अगर ये क्लोज हो गया, पीछे से क्लोज कर देते हैं, 1 सेकंड भी आगे बढ़ने देते।